آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے دست قدرت سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے،
सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इंसान को ठेकरी जैसी बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस एक मर्तबा मौका पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, ये आदम अलैहिस्सलाम अंदर से बिल्कुल खोखला है, अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ लंबा बनाया, फिर इनमें रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहे और उनका जवाब गौर से सुनिए, वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि, यानी व रहमतुल्लाहि का इजाफा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर 60 हाथ कद का होगा। उसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती रही है, यहाँ तक कि मौजूदा सूरत आ गई। फरिश्तों को औलाद आदम की खूनरेजी का इल्म कैसे हुआ? फरिश्ते जमीन पर जिन्नात के आपस के लड़ाई झगड़ों और खूनरेजी को देख चुके थे। उसको सामने रखते हुए उन्होंने औलाद आदम के बारे में भी ये खदशा जाहिर किया कि ये भी आपस में खूनरेजी का इर्तिकाब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला असल हकीकत को खूब जानते हैं। खलीफा बनाने की मसलहत क्या थी? जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो उन्होंने इस नई मखलूक को पैदा करने की मसलहत मालूम की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बिलाशुबा मैं वो बातें जानता हूँ जिनका तुम्हें इल्म नहीं, यानी मैं इस नई मखलूक में नबी, रसूल, आबिद, सिद्दीक, शहीद, जाहिद, वली, बाअमल इल्मा पैदा करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते फजर के वक्त बंदों के आमाल लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए थे वो नमाज असर में मसरूफ थे और जब वापस आए तब भी वो नमाज फजर में मसरूफ थे। यानी फरिश्तों को जिस मसलहत व हिकमत की जुस्तजू थी वो उन्हें इंसान के इबादत में मसरूफ होने की सूरत में दिखाई जाती है। फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फरिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करके उसमें रूह डाल दूं तो तुम उनके सामने सजदा ताज़ीमी में गिर जाना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शक्ल व सूरत बनाने के बाद उसमें रूह डाल दी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा में गिर गए। अल्लाह ताला ने सूरह अल हजर की आयत नंबर 28-30 में फरमाया है, तर्जुमा, और याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी के सूखे गारे से पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं उसे पूरा बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदा रेज हो जाना। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी गई तो उन्हें छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, कहा। अल्लाह ताला ने जवाब में यरहमुकुल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे, फरमाया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया है, जो इंसान की इब्तिदा, उसकी जिम्मेदारी और मकसद हयात को वाजे करता है। तर्जुमा, और जब तेरे रब अल्लाह जुल जलाल ने फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को नायब बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा और खूनरेजी करेगा? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें अशिया को फरिश्तों के सामने पेश फरमाया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह जुल जलाल, तू पाक है, हमें इन चीज़ों के नाम का इल्म नहीं,
सिवा उसके जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, ए आदम, तुम फरिश्तों को इन अशिया के नाम बताओ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के गैब को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब अल्लाह जुल जलाल ने फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को बहका दिया और जन्नत से निकलवा दिया। फिर हमने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें जमीन में एक वक्त तक रहना और फायदा उठाना है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब अल्लाह जुल जलाल से चंद दुआया कलिमात सीखे, तो अल्लाह जुल जलाल ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक अल्लाह जुल जलाल मुआफ फरमाने वाला, रहम करने वाला है। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो नाफरमानी करेंगे और मेरी आयात को झुटलाएंगे वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे। और अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मानिंद है। अल्लाह जुल जलाल ने उनको मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया, हो जा, तू वो हो गए। और अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, तर्जुमा, ए लोगो, अपने रब अल्लाह जुल जलाल से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया, और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह जुल जलाल से डरते रहो, जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्ता नाते तोड़ने से बचो। बेशक अल्लाह जुल जलाल तुम पर निगहबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए लोगो, यकीनन हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया और उससे उसकी बीवी को पैदा फरमाया ताकि वो उसके जरिए सुकून हासिल करे। और यकीनन हमने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, जो सजदा करने वालों में शामिल ना था। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इबलीस ने कहा, मैं इस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, बस तू यहाँ से नीचे उतर जा, तुझे यहाँ तकब्बुर करने का कोई हक नहीं, निकल जा, बेशक तू जलील और मरदूद है। इबलीस ने अर्ज किया, मुझे कयामत के दिन तक की मोहलत दे। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इबलीस ने कहा, बस जैसे तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर उनके सामने, पीछे, दाएं और बाएं से आऊंगा, और तू उनमें अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तू मरदूद होकर यहाँ से निकल जा, उनमें से जो तेरे पीछे चलेंगे मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्म गाहें जाहिर करे जो उनसे छुपी हुई थीं, और उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा के लिए जन्नत में ना रह जाओ। और उसने उनके सामने कसमें खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। बस शैतान ने फरेब देकर उन्हें बहका दिया, और जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्म गाहें जाहिर हो गईं और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर चुपकाने लगे। तब उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और कहा नहीं था कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने अर्ज की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया,
तुम यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक वक्त मुकर्ररा तक जमीन में रहना है और वहाँ फायदा उठाना है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, हमने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी जमीन से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खनखनाते सड़े हुए काले गारे से पैदा फरमाया। इससे पहले जिन्नात के बाप इब्लीस को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आग की लपेट से पैदा किया। जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं एक बशर को खनखनाते सड़े हुए कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और इसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पूछा, ए इब्लीस, तो सजदा करने वालों में शामिल क्यों ना हुआ? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने काले बदबूदार बजने वाले कीचड़ से पैदा किया है। तब अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, बस तू निकल जा, बेशक तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। इब्लीस ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जमीन में उन इंसानों के बुरे आमाल को उनके लिए खुशनुमा बनाऊंगा और इन सब को जरूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे इन मुखलिस बंदों के। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, यही सीधा रास्ता है और मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सिवाय उनके जो खुद तेरी पैरवी करे। यकीनन उन सब के लिए जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा मुकर्रर है। फिर दोबारा फरमाया, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अगर तूने मुझे कयामत तक की मोहलत दी तो मैं उसकी औलाद को जरूर तबाह कर दूंगा सिवाय चंद के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बस जो भी तेरी पैरवी करेगा उन सब की सजा जहन्नम है जो मुकम्मल सजा होगी। तो अपनी आवाज से उन्हें बहका, उन पर अपने सवार और प्यादे लश्कर चढ़ा, उनके मालो औलाद में शरीक बन, उनसे झूठे वादे कर। बेशक शैतान सिर्फ धोखे के वादे करता है और अल्लाह के मुखलिस बंदों पर उसका कोई जोर नहीं चलता और अल्लाह जुल जलाल ही काफी है अपने बंदों की मदद के लिए। मजीद फरमाया, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो जिन्नों में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। जालिमों के लिए ये बहुत ही बुरा बदला है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से तौहीद, रिसालत और नबूवत का मीसाक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के आगाज से ही तौहीद, रिसालत और नबूवत का पैगाम वाज़े फरमा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनकी पुश्त से तमाम नस्ल इंसानी को निकाला गया, जिनमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी शामिल थे। इन तमाम अरवाह से रब्बुल आलमीन ने एक अजीम और अटल अहद लिया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और उसकी भेजी हुई रिसालत की तस्दीक। तमाम अंबिया से लिया गया वादा। अल्लाह ताला का इरशाद है, याद करें जब हमने तमाम अंबिया से तौहीद का अहद लिया और खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा बिन मरियम से, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और याद करो जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो इन चीज़ों की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाओगे और उसकी ज़रूर मदद करोगे। तमाम बनी आदम का इकरार। हज़रत आबी बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम नस्ल इंसानी को निकाला, जोड़ा जोड़ा बनाया, उन्हें शक्ल सूरत दी और कुव्वत गोयाई अता की। फिर उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। ये अहद इसलिए लिया ताकि क़यामत के दिन कोई ये उज़र न कर सके कि वो इस हकीकत से नावाकिफ था। नबूवत और रिसालत का खुसूसी अहद।
तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को रोशन चरागों की मानिंद जाहिर किया गया। उनसे नबूवत और रिसालत के बारे में ख़ास तौर पर वादा लिया गया कि वो अपने ज़माने में लोगों को तौहीद का पैगाम पहुँचाएंगे और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और उनकी तायीद करेंगे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का माल हो तो क्या तुम उसे फिदिया में देकर जहन्नम से खुलासी चाहोगे? वो कहेगा, जी हाँ। अल्लाह फरमाएगा, जब तू आदम की पुश्त में था मैंने तुझसे उससे कहीं आसान बात का वादा लिया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, लेकिन तूने शिर्क पर इसरार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानी हकीम के मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उनके मकाम, आजमाइश और तौबा का तफसीली जिक्र फरमाया है। इन आयात से हमें न सिर्फ इंसान की इब्तिदाई तख्लीक का पता चलता है बल्कि शैतान की फितरत, उसका तकब्बुर और इंसान के साथ उसकी दुश्मनी भी वाज़े होती है। इसके साथ साथ हिदायत व ज़लालत के उसूल और क़यामत के रोज़ अंजाम की हकीकत भी सामने आती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि और हमने आदम से उससे पहले वादा लिया था, बस वो भूल गया और हमने उसमें पुख्ता अज़म न पाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया, चुनाचे वो काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उन्हें तंबीह की कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें जन्नत से ना निकाल दे। जन्नत में उन्हें नेमतें हासिल थीं, भूख, नंग, प्यास और धूप से मुकम्मल हिफाजत हासिल थी, लेकिन शैतान ने फरेब देकर हज़रत आदम और उनकी ज़ौजा को दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया, जिसके नतीजे में उनकी सत्रपोशी ज़ाहिर हो गई और वो जन्नती लिबास से महरूम हो गए। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बशरी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, जिसके बाद उन्होंने नदामत से तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाकर उनको हिदायत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न गुमराह होगा और न तकलीफ पाएगा, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। शैतान की हठ धर्मी का बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसे मुकम्मल कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके लिए सजदा में गिर जाओ। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत है। इब्लीस ने अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहा कि मैं इन सब को जरूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को जरूर भर दूं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप फरमा दें कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता और ना मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है और कुछ मुद्दत बाद तुम्हें उसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर समेत दीगर मोतबर तफासीर में इन आयात मुबारका की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की तफसील से वजाहत की गई है, जिसमें इनकी तख्लीक, आजमाइश, तौबा और शैतान की अदावत जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस की गई है। इन आयात से ये भी मालूम होता है कि इंसान की फितरत में भूल जाना मौजूद है, लेकिन तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत में रहने का हुक्म। हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की छोटी पसली से हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। फरमाने इलाही है, सूरह अल-आराफ की आयत 189 में अल्लाह ने फरमाया, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की ताकि वो उस बीवी से सुकून हासिल करे।
सूरह अल-बकरा की आयत 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कहा ए आदम, आप और आपकी बीवी हव्वा जन्नत में रहो। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायात है, औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। अगर तुम इस पसली को सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ बैठोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसी हालत में उनकी बाएं तरफ की छोटी पसली से हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमाया। इब्लीस की इंसान से दुश्मनी। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया, तो शैतान को इंसान की ये इज़्ज़त व तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने इसी वक्त से ही इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। फरमाने इलाही है, सूरह अल-आराफ की आयत 16 ता 17 में फरमाया। तर्जुमा। इस शैतान ने कहा, ए अल्लाह, चूंकि आपने मुझे गुमराह कर दिया है, इसलिए मैं उन इंसानों को गुमराह करने के लिए आपकी सीधी राह पर घात लगाकर जरूर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, अब जब कि आपने इस शख्स आदम अलैहिस्सलाम को मुझ पर फजीलत दे ही दी है, तो मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए। मैं इसकी औलाद में से चंद लोगों के अलावा सबको जरूर अपने काबू में कर लूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन मानो शैतान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने के लिए इस्लाम की राह पर बैठा हुआ उनके दिलों में ये वसवसा डालता है कि अफसोस तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो रहे हो। सआदतमंद लोग इसकी बात ठुकरा कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर शैतान जिहाद की राह पर बैठकर कहता है कि जिहाद क्यों करते हो, तुम मारे जाओगे, तुम्हारी औरत किसी और से निकाह कर लेगी और तुम्हारा माल तकसीम कर लिया जाएगा। मगर सआदतमंद लोग उसकी बात रद्द करके जिहाद के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग यकीनन जन्नती हैं, खा शहीद हो जाएं या डूबकर या कुचल कर मर जाएं। अल्लाह ताला की बनी आदम को इब्लीस की दुश्मनी पर तंबीहा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत देने के बाद बनी नौ इंसान को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया और ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। ये बड़ा चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम उसे और उसके चीलों को नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है। उसने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदेह जिंदगी से महरूम करवा दिया था। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, जा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो भी तेरी पैरवी करेंगे, तुम सब की सजा जहन्नम ही है, जो पूरा पूरा बदला है। और औलाद आदम में से तो जैसे भी गुमराह कर सकता है कर ले। इन पर अपने सवार और प्यादे भी दौड़ा, उनके माल और औलाद में भी अपना हिस्सा हासिल कर ले, उनसे झूठे वादे भी कर ले, और औलाद आदम से शैतान के सारे वादे महज धोखा ही हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा और तुम्हारा रब उन मुखलिस बंदों की दस्तगीरी करने के लिए काफी है। और याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। वो इब्लीस जिन्नात में से था। इस इब्लीस ने अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी की। ए इंसानों, क्या तुम फिर भी उसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। आगाह रहो, ऐसे जालिमों के लिए ही बुरा बदला है। हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इब्लीस की चाल। जब इब्लीस ने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इज्जत देते हुए उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है, तो वो हसद की आग में जल गया और इंसान दुश्मनी का अमली मुजाहरा करते हुए उन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वो बड़ा हमदर्द बनकर हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम उसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की जिंदगी पालोगे। फरमाने अल्लाह ही है। तर्जुमा, तुम्हारे रब ने तो तुमको इस दरख्त का फल खाने से
सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाल दिया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाहत ना बताऊं जो कभी ना खत्म हो। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का ममनुआ दरख्त का फल खाना। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इब्लीस को अपना हमदर्द और खैर खाह समझकर उसके बहकावे में आ गए और जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया था उसके पास चले गए, और जैसे ही उस दरख्त का फल चखा तो उनके जिस्म पर से जन्नती लिबास फौरन उतर गया। फरमाने इलाही है। तर्जुमा। हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें आराम है, न तुम्हें भूख सताती है, न तुम बरहना नंगे रहते हो, न तुम्हें प्यास लगती है और न ही धूप सताती है। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में आराम और सुकून से रहने लगे और शैतान उन्हें बहकाने के लिए मुसलसल उनका पीछा करता रहा। आखिरकार उसने हजरत आदम और हव्वा को बहकाने के लिए उनके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसे खाने के बाद तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया। शैतान ने एतमाद दिलाने के लिए झूठी कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं और तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूं। शैतान के कसम खाने पर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कए हुए अहद को भूलकर जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था इसका फल खा लिया। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ममनुआ दरख्त का फल चखा तो उनका जन्नती लिबास जिस्म पर से उतर गया और वो शर्म के मारे अपने सत्र को छुपाने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। फरमाने इलाही है, फिर शैतान ने उन्हें इस जन्नत से फिसलाकर इन दोनों को वहां जन्नत से निकलवा दिया। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं दोनों के सामने बेपर्दा कर दे और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तो तुमको इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई कि यकीन जानो मैं तुम दोनों का सच्चा खैर ख्वाह हूँ। चुनाचे शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर जब इन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गई और दोनों अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे और उनके रब ने उनको आवाज दी, क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत से इखराज। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनुआ दरख्त का फल खा लिया तो उनके जन्नती लिबास उतर गए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात से आगाह कर दिया कि जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहकाकर जन्नत से निकलवाया है उसी तरह ये दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की भरपूर कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल न हो सको। लिहाजा अपने आप को इसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें दुनिया में जीने का हुनर भी सिखा दिया और जन्नत के कुछ फल भी अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एतराफ और तौबा। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकालकर जमीन पर उतारा। जमीन पर उतरने के बाद उन्हें जन्नत और उसकी राहत व सुकून वाली जिंदगी याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर तौबा करने लगे और तौबा के कलिमात भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें सिखा दिए थे। फरमाने इलाही है, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम करने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुआया कलिमा, ए हमारे रब, हम अपने आप पर जुल्म कर बैठे हैं,
اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب نے فرمایا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ بھول گئے، اسی لیے آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि अपनी बहन से हाबील को निकाह करने दो, लेकिन काबील ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपनी ही बहन से खुद निकाह करने पर इसरार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह ताला की राह में बतौर नजराना कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। हाबील बकरियां पालता था, उसने एक मोटी ताज़ी बकरी कुर्बान की, और काबील खेती बाड़ी करता था, उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला की राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को खा गई, जो उसकी कबूलियत की अलामत थी। काबील की कुर्बानी जब कबूल न हुई तो उसे गुस्सा आया और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला। जब हाबील कत्ल हो गए तो काबील ने खुले आसमान के नीचे उनकी लाश रख दी, इसलिए कि उसे दफन करने का तरीका मालूम न था। आखिरकार अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया, फिर चोंच से गड्ढा खोदकर मुर्दा कव्वे को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबील ने जब अपनी आंखों से ये माजरा देखा तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, हाय अफसोस, में इस कव्वे से भी गया गुजरा हो गया कि अपने भाई की लाश दफन करने की तदबीर भी न निकाल सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी लोग नाहक कत्ल हो रहे हैं उनका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के हिस्सा में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कत्ल की रेत सबसे पहले काबील ने शुरू की थी, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया, फिर उसके बाद इस तरीका पर अमल किया गया, तो इस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही सवाब लिखा जाएगा और उनके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका राइज किया, फिर उसके बाद इस तरीका पर अमल किया गया, तो इस तरीका राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही गुनाह लिखा जाएगा और अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत उबी बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ए मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। बेटे फल की तलाश में निकल पड़े। सामने से फरिश्ते आते नजर आए, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? बेटों ने जवाब दिया, हमारे वालिद साहब की तबीयत नासाज है और वो जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। फरिश्तों ने आकर उनकी रूह कब्ज़ की, उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और आप अलैहिस्सलाम के लिए लहद बगली कब्र तैयार की। फिर नमाज जनाजा अदा की और कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर मुखातिब होकर कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए मुर्दों को दफन करने का यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में जबल अबी कबैस पर दफन किया गया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह पर चलाए और शैतान के हर बुरे वार से बचाए। आमीन।